रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम रीम रामाय नमः। ओम श्रीम रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलो मित्रों, my elder brothers and sisters, young ones and children. This is original Valmiki-Rāmāyaṇa's original Sri Rama Katha, narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram, Jai Jai Sri Ram. Through this Valmiki-Rāmāyaṇa you can understand the thought and things and characteristics of Sri Ram Bhagwan, Hanuman ji, Lakshman ji, Dasarath ji, the all philosophy of our gods like Ram Bhagwan, Sri Sita Mata, Lakshman ji, Hanuman ji. If you want to understand Hanuman ji, you must read a Valmiki-Rāmāyaṇa, because the original word to word Valmiki-Rāmāyaṇa explain about Hanuman ji, Sri Ram Bhagwan, the best philosophy in the world ever and ever. And this is for value education for our society and moral things to teach our children, our young ones. This is the best way, the value education through Valmiki-Rāmāyaṇa. This is episode number 119 अयोध्याकांड। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। एपिसोड नंबर 119, 105वां सर्ग, अयोध्याकांड। भरत का श्री राम को अयोध्या में चलकर राज्य ग्रहण करने के लिए कहना, श्री राम का जीवन की अनित्यता बताते हुए पिता की मृत्यु के लिए शोक न करने का भरत को उपदेश देना और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही राज्य ग्रहण न करके वन में रहने का ही दृढ़ निश्चय बताना। पंचाधिक शततमः सर्गः, Canto 105। Bharat implored Sri Ram to oblige him by accepting the throne of Ayodhya being offered by him to Sri Ram. With the concurrence of Kaikeyi, even though bestowed on him by this deceased father, consoling Bharat, who had himself responsible for Sri Ram's exile to the forest and was languishing with sorrow on that score. Sri Ram, however, tried to pacify him in various ways and urged him to shoulder the burden of rulership. अपने सूरदों से घिर कर बैठे हुए पुरुष सिंह श्री राम आदि भाइयों की वह रात्रि पिता की मृत्यु के दुख से शोक करते हुए ही व्यतीत हुई। सवेरा होने पर भरत आदि 3 भाई सूरजों के साथ ही मंदाकिनी के तट पर गए और स्नान, होम एवं जप आदि करके पुनः श्री राम के पास
लौट आए। देखिए यहाँ जो है तीन भाइयों की बात हो रही है, शत्रुघ्न की बात यहाँ नहीं हो रही है। द नाइट subsequently passed away in sorrow in the case of the seed tiger among men, accompanied by those near the and dear ones, while the former were grieving, having offered oblation into the scared fire and muttered their prayers on the bank of the Mandakini. When the night had been vividly relieved by dawn, the aforesaid brothers, accompanied by their near and dear ones, sought the presence of Sri Ram. देखिए इंग्लिश में सारे भाइयों का उल्लेख है, यहाँ तीन भाइयों का उल्लेख किया गया है, यानी कि इंग्लिश में सभी भाई मिलके ये पूजा पाठ करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। वहाँ आकर सभी चुपचाप बैठ गए, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तब सूरदों के बीच में बैठे हुए भरत ने श्री राम से इस प्रकार कहा, हे भैया, पिताजी ने वरदान देकर मेरी माता को तो संतुष्ट कर दिया और माता ने वह राज्य मुझे दे दिया। अब मैं अपनी ओर से यह अकंटक राज्य आपकी ही सेवा में समर्पित करता हूँ, आप इसका पालन एवं उपभोग कीजिए। They all sat down mute, none spoke anything. Bharat for his part made the following submission to Sri Ram in the midst of his near and dear ones. My mother Kaikeyi has been consoled by you, and this kingdom of Ayodhya bestowed on me. I hereby return it to your own self. Please enjoy it without impediment. वर्षा काल में जल के महान वेग से टूटे हुए सेतु की भांति, अभी तो वर्षा काल में कितने सेतु टूट रहे हैं, बिहार में टूट रहे हैं, कहीं कहीं टूट रहे हैं जो कच्चे सेतु हैं, ऐसे ही वर्षा काल में उस समय भी सेतु टूटते थे। जल के महान वेग से टूटे हुए सेतु की भांति इस विशाल राज्य खंड को संभालना आपके सिवा दूसरे के लिए अत्यंत कठिन है। Just as a dam breached by a mighty rush of water during the rains cannot be easily repaired, this large state of Ayodhya cannot be easily held in one's sway by anyone other than you. हे पृथ्वीनाथ, जैसे गधा घोड़े की और अन्य साधारण पक्षी गरुड़ की चाल नहीं चल सकते हैं, उसी प्रकार मुझ में आपकी गति का, आपकी पालन पद्धति का अनुसरण करने की शक्ति नहीं है। द पावर ऑफ इम्यूलेट योर रूलिंग कैपेसिटी डज नॉट लाई इन मी, ओ रूलर ऑफ द ग्लोब, एनी मोर देन द पावर ऑफ एम्यूलेट द gait of the horse in a donkey and the flight of Garuda, the carrier of Lord Vishnu in a common bird. श्री राम जिसके पास आकर दूसरे लोग जीवन निर्वाह करते हैं, उसी का जीवन उत्तम है, और जो दूसरों का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं, उसका जीवन दुखमय है। अतः आपके लिए राज्य करना ही उचित है। Know his life to be blessed from day to day. Who is dependent upon by others' life is however dragged on with hardship by him who depends for his life upon others, O Ram. जैसे फल की इच्छा रखने वाले किसी पुरुष ने एक वृक्ष लगाया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, फिर उसके तने मोटे हो गए और वह ऐसा विशाल वृक्ष हो गया कि किसी नाटे कद के पुरुष के लिए उस पर चढ़ना अत्यंत कठिन था। उस वृक्ष में जब फूल लग जाएं, उसके बाद भी यदि वह फल न दिखा सके, तो जिसके लिए उस वृक्ष को लगाया गया था वह उद्देश्य पूरा न हो सका। ऐसी स्थिति में उसे लगाने वाला पुरुष उस प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता जो फल की प्राप्ति होने से संभवित थी। महाबाहो, यह एक उपमा है।
इसका यह अर्थ आप स्वयं समझ ले, अर्थात पिताजी ने आप जैसे सर्वगुण संपन्न पुत्र को लोक रक्षा के लिए उत्पन्न किया था। यदि आपने राज्य पालन का भार अपने हाथ में नहीं लिया तो उनका वह उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा। इस राज्य पालन के अवसर पर आप श्रेष्ठ एवं भरण पोषण में समर्थ होकर भी यदि हम भृत्यों का शासन नहीं करेंगे तो पूर्वोक्त उपमा ही आपके लिए लागू होगी। For example, a tree planted and nurtured by a man develops in course of time into a mighty tree with a stalk trunk, hard to scale for a dwarf. It does not bear fruit. The man does not experience the same delight which he expected from it due to his failure to reach the consummation for which it was planted with effort. This is only an analogy, O mighty arm brother, be pleased to make out its meaning. Since you are our supreme master, do not care to instruct us, your servants, on this occasion when it becomes you to protect us. महाराज, विभिन्न जातियों के संघ और प्रधान पुरुष आप शत्रु दमन नरेश का सब और तपते हुए सूर्य की भांति राज्य सिंहासन पर विराजमान देखे। Let the guilds of trader of every class and their leaders behold you, the subduer of enemies, seated on the throne like the sun blazing on all sides, O great king. ककुत्स कुलभूषण, इस प्रकार आपके अयोध्या को लौटते समय मत वाले हाथी गर्जना करे और अंतःपुर की स्त्रियां एकाग्रचित्त होकर प्रसन्नतापूर्वक आपका अभिनंदन करे। Likewise, let the elephants in a rout trumpet in the course of your return journey to Ayodhya, and let the ladies living in the royal gynecicism fully collected in mind rejoice to see you returned. इस प्रकार श्री राम ने राज्य ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करते हुए भरत जी की बात सुनकर नगर के भिन्न भिन्न मनुष्यों ने उसका भलीभांति अनुमोदन भी किया। Hearing the submission of the celebrated Bharat, supplicating as aforesaid Sri Ram, the citizen of every class assembled at Chitrakuta, acclaimed it in the word well said. तब शिक्षित बुद्धि वाले अत्यंत धीर भगवान श्री राम ने यशस्वी भरत को इस तरह दुखी हो विलाप करते देख उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे भाई, यह जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है, अतः कोई यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता है। काल इस पुरुष को इधर उधर खींचता रहता है। Perceiving the said illustrious Bharat, wailing as above, afflicted as he was, Sri Ram, who was self-possessed and self-disciplined, comforted him in the following words. देखिए श्री राम भगवान क्या कह रहे हैं। Freedom of action does not belonging to the embodied soul, since the soul is powerless. Unlike God, providence alone forcibly drags the soul neither and thither. समस्त संग्रहों का अंत विनाश है, लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है, संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। देखिए ये क्या है, दैट इज़ द फिलोसॉफी ऑफ भगवान श्री राम। कितनी बड़ी महान बात कह रहे हैं। समस्त संग्रह का अंत विनाश है। अगर आप कुछ इकट्ठा करते जाए एक दिन उसका विनाश भी होगा। लौकिक उन्नति का
अंत पतन है और संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। All accumulation and in attenuation, all elevations and in a degradation, all unions and in a separation, all life has its end in a death. जैसे पके हुए फल को पतन के सिवा किसी से भय नहीं है, उसी प्रकार मनुष्य उत्पन्न हुए मनुष्य को मृत्यु के सिवा और किसी से भय नहीं है। As no fear from any quarter other than a fall awaits ripe fruit, so no fear from any quarter other than death awaits a man. प्रकार मनुष्य जरा और मृत्यु के वश में पड़कर नष्ट हो जाता है। Even as a house though supported by stout pillar collapses on getting old, so man fallen into the clutches of old age and death whether their last. जो रात बीत जाती है वह लौट कर फिर नहीं आती है, जैसे यमुना जल से भरे हुए समुद्र की ओर जाती ही है, उधर से लौटती नहीं है। The night that pass away does not return in any case. The Yamuna river meets without fail an all sufficient ocean abounding in water. दिन रात लगातार बीत रहे हैं और इस संसार में सभी प्राणियों का आयु का तीव्र गति से नाश कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में जल को शीघ्रतापूर्वक सोखती रहती हैं। Passing days and nights quickly and the lifespan of all living beings in this world, even as sunbeams suck up water in summer. तुम अपने ही लिए चिंता करो, दूसरे के लिए क्यों बार बार शोक करते हो। कोई इस लोक में स्थित हो या अन्यत्र गया हो, जिस किसी की भी आयु तो निरंतर क्षीण हो ही रही है। Grieve for yourself alone. Why do you grieve for another? In fact, the lifespan of each and every creature, whether staying at home, घर पे रहेगा या बाहर रहेगा, उसकी आयु क्षीण होती ही रहती है। Home or departed for another place gets shortened every moment. That is the काल, महाकाल। हर एक सेकंड क्षीण हो रही है, एक एक क्षण क्षीण हो रही है। कहीं भी रहो आप, मृत्यु साथ ही चलती है, साथ ही बैठती है और बहुत बड़े मार्ग की यात्रा में भी साथ ही जाकर यह मनुष्य के साथ ही लौटती है। Death ever walks with us when we are walking and remains seated with us while we are sitting. Nay, having travelled a very long distance with us, death returns with us on our return. हम जब वापस लौटते हैं तो फिर मृत्यु भी हमारे साथ वापस लौटती है। शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई, सिर के बाल सफ़ेद हो गए, फिर जरा अवस्था से जीर्ण हुआ मनुष्य कौन सा उपाय करके मृत्यु से बचने के लिए अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है। When folds have appeared on the skin of the limbs and their hair have turned grey, by what expedient will a man worn out with age be able to control them? कैसे कंट्रोल कर सकते हो? कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। लोग सूर्योदय होने पर प्रसन्न होते हैं, सूर्यास्त होने पर भी खुश होते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि प्रतिदिन अपने जीवन का नाश हो रहा है। Men rejoice when the sun has risen and also rejoice when the day has ended, but do not perceive the ebbing of their life.
किसी ऋतु का प्रारंभ देखकर मानो वह नई नई आई हो, पहले कभी नहीं आई हो, ऐसा समझकर लोग हर्ष से खिल उठते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि इन ऋतुओं के परिवर्तन से प्राणियों के प्राण का आयु का क्रमशः क्षय हो रहा है। People rejoice to see the approach of a season, say the vernal season or the monsoon, as though it had appeared for the first time, but they forgot that with a change of season comes about the gradual waning of life of living beings. जैसे महासागर में बहते हुए दो काठ कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं और कुछ काल के बाद अलग भी हो जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री, पुत्र, कुटुंब और धन भी मिलकर बिछुड़ जाते हैं, क्योंकि इनका वियोग अवश्यंभावी है। Even as two pieces of driftwood come together on the surface of an ocean at a particular moment of time, having come together in this way, drift apart on reaching a particular moment, so wives and sons, as well as relations and riches, part company after coming together, for inevitable is their separation. इस संसार में कोई भी प्राणी यथा समय प्राप्त होने वाले जन्म मरण का उल्लंघन नहीं कर सकता है। इसीलिए जो किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए बारंबार शोक करता है, उसमें भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वह अपनी ही मृत्यु को टाल सके। No living beings in this world can escape its destiny in the shape of birth and death. When the time comes for it, hence the power to avert his own death does not inhere in a man, even though mourning again and again for a dead person. जैसे आगे जाते हुए यात्रियों अथवा व्यापारियों के समुदाय से रास्ते में खड़ा हुआ पथिक यूँ कहे कि मैं भी आप लोगों के पीछे पीछे आऊँगा और तदनुसार वह उनके पीछे पीछे जाए, उसी प्रकार हमारे पूर्वज पिता पितामह आदि जिस मार्ग से गए हैं, जिस पर जाना अनिवार्य है तथा जिसके बचने का कोई उपाय नहीं है, उसी मार्ग पर स्थित हुआ मनुष्य किसी और के लिए शोक कैसे करे? How can he who has got on the inevitable path trodden by his forebears, with his father, grandfather, and so on, and from which there is no escape, even as one standing on the roadside would cry to a group of travelers passing by, I shall also follow at your heels, and would forthwith follow them, mourn for his parents and other departed relations. जैसे नदियों का प्रवाह पीछे नहीं लौटता है, उसी प्रकार दिन दिन ढलती हुई अवस्था फिर नहीं लौटती है, उसका क्रमशः नाश हो रहा है। यह सोचकर आत्मा को कल्याण के साधनभूत धर्म में लगावे, क्योंकि सभी लोग अपना कल्याण चाहते हैं। Foreseeing the inevitable end of one's abiding life, which does not return any more than a stream, one's own self should be employed in the pursuit leading to blessedness, for living beings are declared as pursuing happiness. तात हमारे पिता धर्मात्मा थे, उन्होंने पर्याप्त दक्षिणाएं देकर प्रायः सभी परम शुभ कारक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उनके सारे पाप धुल गए थे, अतः वे महाराज स्वर्गलोक में गए हैं। Our father the king, the lord of the earth, was a virtuous person.
he performed almost all extremely auspicious sacrifices and paid plentiful sacrificial fees to the officiating priests and brahmanis. All his sins were washed away, and so he went to the heaven. ये मरण पोषण के योग्य परिजनों का भरण करते थे, प्रजाजनों का भली भांति पालन करते थे और प्रजाजनों से धर्म अनुसार कर आदि रूप में धन लेते थे। इन सब कारणों से हमारे पिता उत्तम स्वर्गलोक में पधारे हैं। On account of properly maintaining the servants, protecting and guarding the subjects, and realizing taxes in the manner prescribed by scripture from them, our Father has gone to the heaven. सर्व प्रिय शुभ कर्मों तथा प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ के अनुष्ठान से हमारे पिता पृथ्वीपति महाराज दशरथ स्वर्गलोक में गए हैं। Our father Dashrath, the lord of the earth, has reached heaven on account of his performing all auspicious acts desirable and performing many sacrifices involving heavy sacrificial fees. उन्होंने नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष की आराधना की है, प्रचुर भोग प्राप्त किए हैं और उत्तम आयु पाई थी। इसके बाद वे महाराज यहाँ से स्वर्गलोक को पधारे हैं। Having propitiated the yajna purush by performing different type of sacrifice, enjoying worldly pleasure in the plenty, and having lived a long and virtuous life, the Lord of the earth has gone to the heaven. हे तात, अन्य राजाओं की उपेक्षा उत्तम आयु श्रेष्ठ भोगों को पाकर हमारे पिता सदा सत्पुरुषों के द्वारा सम्मानित हुए हैं, अतः स्वर्गवासी हो जाने पर भी वे शोक करने योग्य नहीं हैं। Having obtained a long life and worldly luxuries, the father from the Raghu dynasty has gone to the heaven, coveted and honored by the virtuous people. Oh dear, he is not at all to be lamented upon. हमारे पिता जरा जीर्ण मानव शरीर का परित्याग करके देवी संपत्ति प्राप्त की है, जो ब्रह्मलोक में विहार कराने वाली है। Having shed his own out human frame, our father has surely attained celestial wealth in the form of an eternal body, etc., which enables him to sport even in the realm of Brahma, the highest heaven. कोई भी ऐसा विद्वान जो तुम्हारे और मेरे समान शास्त्र ज्ञान संपन्न एवं परम बुद्धिमान है, पिताजी के लिए शोक नहीं कर सकता है। No highly wise, learned and exceptionally clever man such as you and I are out to grave for the emperor. धीर एवं प्रज्ञावान पुरुष को सभी अवस्था में ये नाना प्रकार के शोक, विलाप और रोदन त्याग देना चाहिए। These manifold griefs as well as wailing and weeping should in the case undoubtedly be given up under all circumstances by a resolute man possessed of wisdom. धीर एवं प्रज्ञावान पुरुष को सभी अवस्था में ये नाना प्रकार के शोक और रोदन त्याग देना चाहिए। इसलिए तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम्हारे मन में शोक नहीं होना चाहिए। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ भरत, तुम यहाँ से जाकर अयोध्यापुरी में निवास करो
क्योंकि मन को वश में रखने वाले मनुष्य पिताजी ने तुम्हारे लिए यही आदेश दिया है। As such, be at ease, let not grief overpower you, and returning home, dwell in that city of Ayodhya. So have you been enjoined by Father, a master of his will, who dwell among the eloquent. उन पुण्य कर्म महाराज ने मुझे भी यहाँ रहने की आज्ञा दी है। वहीं रहकर मैं उन पूज्य पिताजी के आदेश का पालन करूँगा। I too shall do the bidding of our noble father, continuing in that very place where I have been enjoined to stay by that emperor of virtuous deeds. शत्रु दमन भरत, पिता की आज्ञा की अवहेलना करना मेरे लिए कदापि उचित नहीं है। वे तुम्हारे लिए भी सदा सर्वदा सम्मान के योग्य हैं, क्योंकि वे ही हम लोगों के हितैषी बंधु और जन्मदाता थे। It is not justifiable on my part to flout his command, O subduer of foes. He ever deserved to be honored even by you, since he was our friend, he was our very father. हे रघुनंदन, मैं इस वनवास रूपी कर्म के द्वारा पिताजी की ही वचन को धर्मात्माओं को भी मान्य है और पालन करूँगा। Sojourning in the forest, O season of Raghu, I shall obey that very command of my father, which is thought highly of by those practicing virtue. हे नरश्रेष्ठ, परलोक पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को धार्मिक, क्रूरता से रहित और गुरुजनों का आज्ञा पालक होना चाहिए। A pious man seeking to conquer the other world, O tiger among men, ought to be kind-hearted and obedient to his elders, fathers and others. मनुष्य में श्रेष्ठ भरत, हमारे पूज्य पिता दशरथ के शुभ आचरणों पर दृष्टिपात करके तुम अपने धार्मिक स्वभाव के द्वारा आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्न करो। Keeping in view the virtuous conduct of our father, King Dashrath, who dwell among men, direct your thought only towards the welfare in the other world of your spirit in consonance with your pious nature. हे सर्वशक्तिमान महात्मा श्री राम, एक मुहूर्त तक अपने छोटे भाई भरत से पिता की आज्ञा का पालन कराने के लिए उद्देश्य से यह अर्थ युक्त वचन कहकर चुप हो गए। Having tendered to his younger brother Bharat in about an hour the aforesaid significant advice, urging him to carry out the behest of their father, the high-souled and almighty Sri Ram become silent. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 105वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्ष श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे पंचधिकशततम सर्गः। Thus ends Canto 105 in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of Rishi and the oldest epic. जय श्री राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव पतित पावन सीताराम, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय महाराज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय महाराज।